Okay, very good morning to all. Now, just going to take method of partial fractions in inverse of Laplace transform. So, okay, now see the method of partial fractions. Already we solved method of partial fractions in application of a Laplace transform topic. Now, I'm just trying to solve one, two, or three numericals so that you will understand how to tackle such a kind of a numericals. So, my first numericals is s square plus 2s minus 4 upon s square plus 2s plus 5 into s square plus 2s plus 2. So this is our question. We have to calculate the Laplace inverse. In examination it will comes like this: find the inverse of Laplace transform of this function. तो वहाँ पे आपको कन्वोल्यूशन नहीं यूज करना है. जब कन्वोल्यूशन आपको दिया गया तो यू हैव टू यूज दैट इज कन्वोल्यूशन थ्योरम, else you have to go through with this method of partial fraction. So as earlier I told that when the quadratic functions are present in the denominator, you have to apply. So I'm just applying here, that is s square. Just a second. Okay, so s square plus 2s minus 4 upon s square plus 2s plus 5 into s square plus 2s plus 2, which is equal to, now this is quadratic form, this is also quadratic form, so we have to define both the quadratic form, like as plus b upon s square plus 2s plus 5 plus cs plus d upon s square plus 2s plus 2. So just we have to cross multiply and equal to, because denominator तो by default दोनों का same आएगा. So I'm writing directly that is s square plus 2s minus 4 is equal to as plus b into s square plus 2s plus 2 plus cs plus d into s square plus 2s plus 5. This is 5, so please remember. So just we have to multiply with the terms so that you will get the result. So s square is equal to s square plus 2s plus 4, which is equal to, मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे तो you will getting as cube plus 2as square plus 2as, similarly plus bs square plus 2bs plus 2b, plus similarly here we have to apply cs cube plus 2cs square plus 5cs plus ds square plus 2ds plus 5d.
So we have to just simplify this part, s cube terms, and we have to equate. तो यहाँ पे देखोगे तो s cube present नहीं है, so we can apply directly, that is this a plus c. So a plus c is equal to 0. This is my equation number 1. क्योंकि s क्यूब यहाँ पे प्रेजेंट है. नाउ s स्क्वायर वाला पार्ट लेंगे तो s स्क्वायर s स्क्वायर s square s square. So I'm just writing here 2a plus b plus 2c plus d is equal to 1. Equation number 2. Y plus d equal to 1, because s square is given, that is s square. So you have to equate. When you are equating the terms, you will getting s square that is equal to 1. So we have to simplify next term, that is only s. So 2s plus 2bs plus 5cs plus 2ds. So I'm just writing again, that is 2a plus 2b plus 5c plus 2d, not 2, 2d, 2d is equal to 2, because here it is 2s. This is, I'm just giving, this is equation number 3. Now last, only constant value you have to define, only constant value. So see 2b and 5d. So I'm just writing here 2b plus 5d is equal to 4. Equation number. Now we have to simplify this part. So after partial fraction we just got this value. Now see, if I see that if I can convert, that is a equal to minus c here, a, Sir, a equal to minus c. sir, Yes. on the left hand side it's minus 4 or plus 4. Okay, just let me check. It is minus 4. Yeah, so we have to write minus 1, minus 4 as it is. Yes, because of this we have to just rearrange terms. So please see, this is minus 4, so you have to write as a minus 4. Okay, thank you for making a correction. 2b plus 5d is equal to minus 4. Now a equal to, I'm just applying, that is a equal to minus c, or c equal to minus a. A equal to minus c, if I substitute here, then it will becomes what, minus 2c plus 2c get cancel, only we will getting b plus d. सो वो बी प्लस डी हम लोग को मिल जाएगा. वो बी प्लस डी को इस इक्वेशन के साथ अगर हम इक्वेट कर देंगे, तो वी कैन गेट द वैल्यू ऑफ बी एंड डी बोथ. दोनों इक्वेशन का बी और डी दोनों मिल जाएगा. once we got that is a b and d, we can substitute. Suppose if I substitute here b and d, b और d यहाँ पे सब्सटीट्यूट जैसे आप कर दोगे, a इक्वल टू आपको पता है माइनस सी, वो भी यहाँ पे रखोगे. So by default you can calculate the values. So I'm just applying, that is a equal to minus c in equation 2. Even if you want, you can substitute here also. No worries. या इसमें दोनों में substitute करके दोनों को equate करो. It's up to you. In equation number 2. So what, while substituting in equation number 2, you will getting what, a equal to minus c. I'm writing, that is minus 2 into c plus b plus 2c plus d is equal to 1. So this part get cancelled, so you will getting, that is b plus d is equal to 1. So we can use this equation. So using equation 4 and b plus d is equal to 1.
So we have to simplify this part here. Very simple equation. So देखो अच्छी तरह से ये b plus d है, ये 2b plus d, 2b plus 5d है, तो I'm just applying that is a b, or you can give this is equation number 5. So better you have to understand. अगर इक्वेशन नंबर 5 दे देते हैं यहाँ पे, तो इसको इक्वेशन नंबर 5 से रिप्रेजेंट करेंगे यूजिंग इक्वेशन 4 एंड इक्वेशन 5. So I'm applying that is 2b plus 5d इज इक्वल टू -4. ये ज़रूरी नहीं है कि इतना स्टेप आप दिखाओ, आप कैल्सी में भी अगर आपसे डायरेक्टली सॉल्व होकर आपको ये वैल्यूज़ मिल सकते हैं, तो आप कैल्सी में भी अप्लाई करके सॉल्व करके डायरेक्टली वैल्यू लिख सकते हो. कोई डिफर वो नहीं है कि आप ये दिखाओ कि यूजिंग इक्वेशन 4 एंड 5, फिर उसके बाद इसको 2 से मल्टीप्लाई करो या 5 से मल्टीप्लाई करो. ये इतना स्टेप ऐसा दिखाने का कोई ज़रूरत नहीं है, कोई भी एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं है. डायरेक्ट आप कैल्सी यूज़ करके इक्वेशंस अगर सॉल्व हो जाते हैं, मतलब ये इक्वेशंस अगर आपको मिल जाता है, लाइक इक्वेशन नंबर 1 2 3 4, अगर ये इक्वेशन सॉल्व आप कैल्सी में करके डायरेक्टली वैल्यू आ रहा है और प्रॉपर वैल्यू आता है, तो यू कैन सॉल्व. नो वरीज. So 2b plus 5d minus 4, and I'm just applying directly, that is b plus d is equal to 1. बट यहाँ पे अपने को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे करता हूँ 2b 2d इंटू 2. थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग करो खाली, so that after simplification you will getting what I'm just applying the subtraction, minus minus. So these two parts get cancelled. 5d minus 2d remaining is 3d. So you will getting that is a 3d is equal to -4 minus 2, it will becomes -6. So d is equal to -2. So you are getting d equal to -2. Therefore d equal to -2 in equation 5th. In equation 5, so while substituting equal to -2 here, you will getting what -2, it will come see this side, it will become plus 2. So 1 plus 2, it will becomes 3. So I'm just writing that is b equal to 3. So you're getting that is b equal to 3 and d equal to -2. So we have values, two values, it is clearly defined. If I substitute here, in equation 2 and equation 3, और उसको भी साइमल्टेनियसली अगर सॉल्व कर लो, ये साइमल्टेनियसली क्या है, इक्वल टू -c आपने पहले ही ले लिया है. इसमें रख के फॉर एग्जांपल अगर मैं सॉल्व करूं, या इसमें ही रख के आपको सॉल्व करना है तो आप सॉल्व कर सकते हो, लेकिन इसमें कैसा था 2c कैंसिल हो गया था, तो आपको कोई वैल्यू डिफाइन नहीं होगा. तो यहाँ पे अगर रखोगे तो आपको डायरेक्टली c का वैल्यू डिफाइन हो जाएगा. सो आई एम जस्ट सब्स्टिट्यूटिंग b इक्वल टू 3, b equal to 3, d equal to -2, and a equal to -c in equation 3. In equation 3. See what happened while substituting in equation 3. This is equation number 3. 2a plus 2b plus 5c plus 2d equal to 2. So just putting here, that is 2 into -c plus 2 into 3 plus 5 into c as it is, plus 2 into d is -2 is equal to 2. So just we have to simplify this part. 2 3s are 6, -4 remaining is 2. वो 2 इधर चले जाएगा तो वो पार्ट आपका 0 हो जाएगा. तो -4 plus 6 remaining is only 2. इस साइड आएगा तो 2 minus 2 it will become 0. Similarly 5c minus 2c remaining is 3c. So 3c equal to, I can write here 0. 3c equal to 0. Therefore c is equal to 0. c 0 आ गया, मतलब a भी आपका by default 0 रहेगा. So hope things are clear how we calculated the values a, b, c and d. So a and c both are 0. So I'm just substituting a equal to 0. These values, a equal to 0, c equal to 0, b is equal to 3 and d is equal to -2. कहाँ पे रखोगे वैल्यू?
अगर तो याद रखेगा तो ये इक्वेशन में आपको रखना है हमेशा जो पार्शियल फ्रैक्शंस आप करते हो। सो ए एस प्लस बी अपॉन, तो वी हैव टू सब्स्टिट्यूट हियर। और एक बार मैं फिर से वो इक्वेशन लिखता हूँ इफ रिक्वायर्ड, दैट इज एस स्क्वायर प्लस 2s माइनस 4 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 2s प्लस 5 एस स्क्वायर प्लस 2s प्लस 2 is equal to as upon as plus b upon s square plus 2s plus 5 plus cs plus d upon s square plus 2s plus 2। तो ये इक्वेशन में आपको रखना है ये वैल्यूज। तो देखो a ज़ीरो है तो हम जस्ट अप्लाइंग डायरेक्टली, दैट इज a इज ज़ीरो, तो ये पार्ट ज़ीरो हो जाएगा। b इज 3, तो 3 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 2s plus 5, c is also 0, so this part is by default 0, d is minus 2, so minus 2 upon s square plus 2s plus 2। अभी इसका लाप्लास इनवर्स कैलकुलेट करना है, वी हैव टू कैलकुलेट। सो दिस इज आवर एफ ऑफ एस, सो आई एम जस्ट रिप्रेजेंटिंग एफ ऑफ एस, क्योंकि बार बार वो टर्म लिखने से अच्छा सिर्फ एफ ऑफ एस लिखें। एफ ऑफ एस वी हैव टू कैलकुलेट लाप्लास, सो आई एम अप्लाइंग 3 अपॉन, मैंने आपको सिखाया है कि एस स्क्वायर प्लस 2s है, मतलब एस प्लस समथिंग का पैकेट आपको क्रिएट करना है। 2s यहाँ पे है तो इस पार्ट को आप डायरेक्टली क्रिएट कर सकते हो, s प्लस वन दी होल स्क्वायर, मतलब क्या आएगा एस स्क्वायर प्लस 2s प्लस वन। ये 4 है तो इसको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे एडजस्टमेंट आप करोगे, क्योंकि 5 है तो 4 प्लस वन दैट इज इक्वल टू 5 हो जाएगा। सिमिलरली माइनस 2 अपॉन, यहाँ पे भी सेम ब्रैकेट s प्लस वन दी होल स्क्वायर प्लस वन कर दो, और हम लाप्लास इनवर्स अप्लाई करेंगे। सो आई एम अप्लाइंग दैट इज द लाप्लास इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एस विच इज इक्वल टू एस प्लस वन आउटसाइड आएगा इन टर्म्स ऑफ ई रेज टू माइनस टी, रिमेनिंग टर्म्स विल बिकम्स लाप्लास इनवर्स ऑफ 3 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4। Similarly here minus e raised to minus t outside, remaining part is Laplace inverse of 2 upon s square plus 1। ये पार्ट हमको मिल रहा है, यहाँ पे थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना है सिर्फ और सिर्फ। देखो आपने सीखा है कभी भी a अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होता है तो वो साइन का पार्ट होता है, लेकिन यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे 2 होना चाहिए, वो चीज़ प्रेजेंट नहीं है, तो 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड आपको करना है सिर्फ और सिर्फ, तो वो पार्ट आपको डायरेक्टली साइन 2t मिल जाएगा। यहाँ पे तो डायरेक्टली साइन t आपको प्रेजेंट है, सिर्फ 2 को आउटसाइड निकालना है आपको। सो आई एम अप्लाइंग हियर दैट इज अ लाप्लास इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एस which is equal to 3 by 2 into e raised to minus t into Laplace inverse of 2 upon s square plus 4। 2 से मल्टीप्लाई किया है और 2 से डिवाइड किया है, यहाँ पे माइनस 2 इंटू ई रेस टू माइनस टी, माइनस 2 इंटू टू आउटसाइड कर दिया है, लाप्लास इनवर्स ऑफ 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर और 1 kept as it is। So after calculation this part Laplace inverse of f of s which is equal to, या फिर आपको चाहिए तो e रेस टू माइनस कॉमन ले सकते हो या kept as it is रख दो, 3 by 2 इंटू ई रेस टू माइनस टी इंटू साइन ऑफ 2t माइनस 2 इंटू ई रेस टू माइनस टी इंटू साइन ऑफ t। So after calculation or after simplification we just got this result। यहाँ पे इसलिए बोला है कॉमन लेना है तो ले सकते हो, नहीं लोगे तो भी फर्क नहीं आएगा, क्योंकि नेक्स्ट कोई भी वैल्यू नहीं आएगा। ये साइन 2t है, ये साइन t है, चलो ये भी साइन t रहता, ये भी साइन t रहता, तो दैट वी कैन कंसीडर दैट इज वी हैव टू टेक कॉमन एज अ नेसेसरी पार्ट। So this rule is known as a partial fractions। Already we solved such a kind of a numericals during during the solution of application of differential application of a Laplace transform in differential equation।
तो डिफरेंशियल इक्वेशन में ऑलरेडी आपने सॉल्व किया है ये पार्ट को. So just go through with this. That is, we have to apply that is a partial fractions. जो भी सम आएंगे उस partially directly apply करके solve करो. One more question we have to solve here. Next question I'm taking. Okay, now first, second question. S upon S square plus 1, S square plus 4, and S square plus 9. Now to calculate the Laplace inverse of that respective function. कैसे calculate करना है? Again the same procedure we have to apply. S square plus 1, again it is a quadratic format is given. Similarly, as plus b upon s square plus 1 plus cs plus d upon s square plus 4, and next that is es plus f. क्योंकि quadratic equation है तो उस हिसाब से मैं यहाँ पे डायरेक्टली सॉल्व करता हूँ. ए एस प्लस बी अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 plus cs plus d upon s square plus 4 and es plus f upon es plus f upon s square plus 9. सिंप्लीफाई करो डायरेक्टली, तो डायरेक्टली यहाँ पे सिंप्लीफाई करता हूँ. s इक्वल टू, देखो इस टर्म्स के पास ये दोनों ब्रैकेट आने वाले हैं बाय डिफॉल्ट, तो आई एम जस्ट राइटिंग डायरेक्टली दैट इज ए एस इंटू, सॉरी, ए एस प्लस बी इंटू एस स्क्वायर प्लस 4 इंटू एस स्क्वायर प्लस 9 प्लस सी एस प्लस डी इंटू एस स्क्वायर प्लस 1 इंटू एस स्क्वायर प्लस 9 and es plus f into s square plus 4 into s square plus 1. ये पार्ट नहीं आएगा तो जस्ट सिंप्लीफिकेशन डिवाइड में तीनों पार्ट आएंगे, वो कैंसिल हो जाते हैं, तो इसलिए हम लोग इसको नहीं लिखते हैं. फिर से इक्वेशन नंबर 1 दे देता हूँ. फिर से इक्वेशन नहीं लिखना पड़ेगा हमको, डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं. ये हमारा मेन फंक्शन है. सो वी हैव टू सिंप्लीफाई ए एस, सॉरी, एस इक्वल टू, देखो अच्छी तरह से, एस स्क्वायर प्लस 4 है, एस स्क्वायर प्लस 4 9 है, एस स्क्वायर प्लस 1, एस स्क्वायर प्लस 9 है, एस स्क्वायर प्लस 4 है, और एस स्क्वायर प्लस 1 है. तो वैसे भी वैल्यूज रख सकते हो एस स्क्वायर इक्वल टू समथिंग, बट कोई कुछ वैल्यूज के लिए आपको सिंप्लीफिकेशन रिक्वायर्ड लगेगा यहाँ पे. तो बेटर वी हैव टू सिंप्लीफाई एंड इक्वेट. मेरा हमेशा व्यू यही रहता है कि आप सिंप्लीफाई कर लो और उसके बाद इक्वेट कर लो, इजीली आपको रिजल्ट डायरेक्ट मिल जाता है. So I'm just simplifying this part. So see, this is s square into s square is, it will becomes s raised to 4, और ये मल्टीप्लाई होगा तो a s raised to power 5 हो जाएगा. Next you have to apply s square into 9s square और प्लस 4s square. 9 प्लस 4 इट इज इक्वल टू 13s square. वो 13s square भी s से मल्टीप्लाई होएगा तो आपको मिलेगा 13 a s raised to cube, because s square into 9, 9s square, 4 into s square, that is equal to 4s square. So 9s square plus 4s square, it is equal to 13s square. 13s square into as, then you will getting that is 13as cube. लास्ट आपका ये पार्ट रहेगा 36. 36 into a, तो you have to apply that is 36 as. Similarly for b, तो b s raised to 4 आएगा, क्योंकि s square into s square by default you will getting s raised to 4, तो b s
13s² था, 13s² इधर मल्टीप्लाई होगा तो 13d s², लास्ट 36b, तो 36। फर्स्ट का सिंप्लीफिकेशन, सिमिलर सेकेंड का सिंप्लीफिकेशन करूंगा तो s⁻², तो c(s⁻5), नेक्स्ट दैट इज 9s² प्लस s², 10s² होगा तो प्लस 10c(s³), लास्ट दैट इज 9, तो प्लस 9c(s). सिमिलरली d के साथ भी करोगे तो d(s⁻4), देन प्लस 10d(s²), प्लस 10d(s²), और लास्ट 9 वन ज़ा 9, तो प्लस 9d ओनली। ये सेकेंड टर्म हो गया आपका। लास्ट टर्म के लिए भी सिमिलर वे से आप करोगे तो s⁻4 आपको मिलेगा, es से मल्टीप्लाई करोगे तो आई एम जस्ट राइटिंग हियर ओनली, प्लस 4, सॉरी, प्लस es⁻5 प्लस 4s² प्लस s², दैट इज 5s², तो 5es³, लास्ट 4 वन ज़ा 4, तो प्लस 4es। तो आई एम जस्ट राइटिंग हियर दैट इज प्लस 4es प्लस fs⁻4 आ जाएगा आपका, प्लस 5 है तो 5fs², और लास्ट आपको आएगा सिर्फ और सिर्फ 4f। जो भी है उससे एक पावर कम यहाँ पे टर्म्स मिलते जाएंगे f के लिए। अभी इक्वेट डायरेक्टली कर रहा हूँ यहाँ पे, तो a प्लस c प्लस e प्लस, सर दैट इज इक्वल टू पावर 5 वाले, पावर 5, पावर 5, पावर 5 इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 2। पावरफुल वाले टर्म्स देखूंगा यहाँ पे, तो b, d and f only, so b plus d plus f इज इक्वल टू 0, क्योंकि पावर 4 भी नहीं यहाँ पे। इक्वेशन नंबर 3 दे देता हूँ। पावर क्यूब वाले टर्म आप देखोगे तो 13 है, फिर कोई पावर टर्म 3 नहीं है, फिर 10c, देन यू हैव टू सी दैट इज 5 इज इक्वल टू 0, बिकॉज पावर 3 भी यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है। इक्वेशन नंबर 4, ओनली स्क्वायर टर्म्स यू हैव टू सी, ओनली स्क्वायर टर्म्स, यहाँ पे कोई नहीं है। यहाँ पे आओगे तो यहाँ पे आपको b² मिलेगा, तो आई एम जस्ट राइटिंग दैट इज 13b। फिर उसके बाद आप यहाँ पे आओगे तो 10d, एंड लास्ट इज 5f इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 5, क्योंकि s² भी प्रेजेंट नहीं है यहाँ पे। नेक्स्ट ओनली c टर्म्स, तो 36a, and next if you see that is 36a, 9c, 9c and 4e, 4e equal to 1. This is equation number 6, because s दिया है यहाँ पे। Last only constant value we have to take. So while taking 36b, 36b, 9d, 9d and 4f is equal to 0, equation number 7। अब इसको सॉल्व करना है हमको, तो सॉल्व हो सकता है, ऐसा कोई डिफिकल्ट वर्क नहीं है। a प्लस सी प्लस ई इज इक्वल टू 0, फर्स्ट जो फर्स्ट इक्वेशन है या सेकेंड इक्वेशन जिससे रिप्रेजेंट किए हैं उसको यूटिलाइज कर सकते हो आप। फॉर एग्जांपल
क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखोगे अच्छी तरह से तो इक्वेशंस आपके जो हैं, जैसे सेकेंड इक्वेशन फोर्थ इक्वेशन में ए सी ई है, फिर सिमिलरली सिक्स इक्वेशन में भी है, तो तीन इक्वेशन ए सी ई वाले हैं और तीन इक्वेशन बी डी एफ वाले हैं। तो अकॉर्डिंग टू यू कैन यूटिलाइज इक्वेशन, और आपके कैल्सी तो आपके पास रहता ही है, कैल्सी को यूटिलाइज करके आप सॉल्व करोगे तो भी आपको मिल सकता है। एनी वन कैन यूज कैल्सी, कैलकुलेटर होगा तो कैल्सी से सॉल्व करके बता सकता है मुझे। दैट इज इफ यू सी दैट इज this equation and this equation, so by default you will get the values, anyone कैलकुलेटर यूज करके, बिकॉज आई थिंक कैल्सी से डायरेक्टली इसका रिजल्ट आ जाता है। इसको थोड़ा सा स्मॉल यहाँ पे अगर चाहिए तो कर सकते हो आप, जैसे एस स्क्वायर प्लस फोर एस स्क्वायर प्लस नाइन है, सी दैट एस स्क्वायर प्लस फोर इंटू एस स्क्वायर प्लस नाइन। फॉर एग्जाम्पल अगर एस को मैं जीरो रख दूँ, एस को अगर जीरो रख दूँ तो ये पार्ट मेरा जीरो हो जाएगा, मतलब वही इक्वेशन ही मिलने वाला है, बी डी और एफ का इक्वेशन आपको मिलेगा, बाकी कुछ नहीं है। सिमिलरली अगर एस स्क्वायर को आप माइनस फोर ले लेते हो, फॉर एग्जाम्पल एस स्क्वायर माइनस फोर, तो ये पार्ट आपका ज़ीरो हो जाता है। लेकिन फिर यहाँ पे वैल्यूज रखने में तो बेटर है यू हैव टू गो थ्रू विद दिस इक्वेशन फॉर्मेट। एनीवन, किसी ने कैल्सी यूज किया, कैन जस्ट कमेंट कैल्सी। यू मस्ट कैरी अ कैलकुलेटर ड्यूरिंग द लेक्चर टाइम। एनीवन, देर आर equation 2, equation 4 and equation 6. These are the similar kind equation, that is ACE, 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 and equation 3, equation 5 and equation 7 BDF। मोड में जाओगे, इक्वेशन में जाओगे तो वहाँ पे सॉल्यूशन मतलब इक्वेशन फॉर्मेट दिया गया है, अगर देखोगे तो आप हो रहा है सॉल्व या नहीं हो रहा है, तो विल मूव अहेड। एनीवन, कमेंट तो करो, कर रहे हो नहीं कर रहे हो कोई भी, आई एम जस्ट आस्किंग। वेट, अमय देसाई, सॉल्व कर रहे हो आप कैल्सी से? आकाश पांडे, सर मेरे ख्याल से मैं सिर्फ तीन ही इक्वेशन का है। तीन इक्वेशन करो ना बेटा, तीन इक्वेशन क्यों नहीं कर रहे हो? आप दो बार में तीन इक्वेशन सॉल्व करो ना, दोनों दो बार में। यू आर नॉट गेटिंग माई पॉइंट। ये इक्वेशन पहला ले लो, फिर एक इक्वेशन दूसरी ले लो, इक्वेशन तीसरा ये ले लो, ये तीनों एक बार सॉल्व करो तो ए सी आपको मिल जाएगा वैल्यू। फिर सिमिलरली ये तीनों इक्वेशन लोगे तो बी डी एफ मिल जाएगा आपको वैल्यू। नेक्स्ट वन, कोई किसी ने सॉल्व किया? ओके, जस्ट वेटिंग 5 मिनट्स, ट्राई टू सॉल्व। नहीं हो रहा है तो फिर अपने को वही मेथड से जाना पड़ेगा, खाली लेंथी जाएगा, इसके लिए मैं बोल रहा था। चलो, अगर नहीं सॉल्व हो रहा है तो उसी से, तो ए इक्वल टू अगर मैं ले लूँ माइनस सी माइनस ई, रख देते हैं फोर्थ और सिक्स में, तो दो दो फॉर्मेट में इक्वेशन हो जाएगा, दो फॉर्मेट में मतलब दो वेरिएबल में हो जाएगा बाय डिफॉल्ट। सो आई एम जस्ट सब्स्टिट्यूटिंग हियर ए इक्वल टू माइनस सी माइनस ई इन इक्वेशन 4 and 6। सो
first you will getting that is 13a, so 13 into minus c minus e plus 10c plus 5e इक्वल टू 0। ये एक इक्वेशन आपको मिल रहा है। दूसरा इक्वेशन ये रहेगा आपका 36 माइनस सी माइनस ई प्लस 9c प्लस 4e इज इक्वल टू 1। सिंप्लीफाई कर दो इसको तो 13c हो जाएगा, 13c और यहाँ पे 10c है, आई एम जस्ट राइटिंग दैट इज माइनस 3c। ये आपका माइनस 13 ही हो जाएगा, प्लस 5e है, तो बाय डिफॉल्ट आई कैन राइट एज अ 80, मतलब विथ माइनस साइन माइनस 80 इज इक्वल टू 0। सिमिलरली इस इक्वेशन को यहाँ पे मैं लिखता हूँ, 36c है, 9c इसमें से सब्सट्रैक्ट करोगे आप तो हाउ मच it will remain as a 37, because 6 while cancellation is remaining 30, so remaining is 37, so I'm 27 with the negative sign minus 27c। सिमिलरली माइनस 36e यहाँ से कैंसिल हो जाएगा 4e, तो आपको क्या मिलेगा माइनस 32e इज इक्वल टू 1। ये दो इक्वेशन मिला। अब तो c का वैल्यू और e का वैल्यू बाय डिफॉल्ट मिल जाएगा, c और e मिल जाएगा तो a अपने को मिल जाएगा। सिमिलरली जैसे ये इक्वेशन सॉल्व किया हूँ वैसे BDF वाला इक्वेशन पे मेरे को आना पड़ेगा। सो आई एम जस्ट सॉल्विंग साइमल्टेनियसली, तो बाय डिफॉल्ट इसको मेरे को आपके ऊपर है। अगर मैं इसको c को कैंसिल करना है तो मेरे को इस पार्ट बाय डिफॉल्ट 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आई एम जस्ट अप्लाइंग हियर दैट इज 9 इंटू, या बेटर मैं e को लेता हूँ, तो 4 इंटू माइनस 3c माइनस 8e इक्वल टू 0। 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ इस पूरे इक्वेशन को, तो देखो क्या मिलेगा। व्हाट आई विल गेट दैट इज, यू विल गेटिंग दैट इज माइनस 12c माइनस 32e इक्वल टू 0। और जस्ट अ सेकेंड, इसका हिस्सा ही लिखता हूँ डायरेक्ट। 4 3 सा 12, तो माइनस 12c माइनस 32e इक्वल टू 0। अब सब्सट्रैक्शन कर देता हूँ, तो ये आपका प्लस हो जाएगा, ये भी आपका प्लस हो जाएगा, और ये तो छोड़ दो, इसको कुछ मतलब नहीं है। तो इधर कैंसलेशन हो सकता है आपका, 27 में से 12 एलिमिनेट करो, पॉजिटिव और ये निगेटिव है इसकी वजह से। सो बाय डिफॉल्ट यू विल गेटिंग माइनस 15c। Next you have to apply this, two parts get cancelled, so remaining you will getting that is a 1 only। तो c इक्वल टू आपको मिलता है माइनस 1/15। अब c आपको मिल चुका है माइनस 1/15, तो यू कैन कैलकुलेट इजीली दैट इज e, कोई भी इक्वेशन में रख दो। जैसे इस इक्वेशन में अगर मैं रख दूँ c इक्वल टू माइनस 1/15 इन माइनस 3c माइनस 80 इज इक्वल टू 0 में, इसमें अगर सब्स्टिट्यूट करूँ तो मेरे को मिल सकता है वैल्यू, तो माइनस 3 इंटू माइनस 1/15 माइनस 8e इज इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई कर सकते हो इसको, मतलब सिंप्लीफाई मतलब कैंसिल नहीं होता है, कोई बात नहीं। 15 से पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई करो या 15 एलिमिनेट करो, सो हाउ मच दैट इज 15 इंटू 8, तो दिस विल बिकम्स अ 3। ये तो कैंसलेशन कर सकते थे ना हम लोग इजीली, दैट इज वी कैन कन्वर्ट दिस पार्ट एज अ, और 5 से कंप्लीटली वो करते हैं, 5 से करोगे तो यू विल गेटिंग दैट इज अ 1 ओनली हियर, माइनस 40e इज इक्वल टू 0, तो e इज इक्वल टू 1/40। e मिल गया, c अपने को मिल गया। अभी बाय डिफ़ॉल्ट a मिल जाएगा,
ए का इक्वेशन देखो अच्छी तरह से, या इन इक्वेशन नंबर 2 में बोल सकता हूँ रखने के लिए। तो c इक्वल टू -1/15 and e is equal to 1/40 in equation 2। 8 मार्क्स के न्यूमेरिकल्स हैं, अगर आता है एग्जाम में तो 8 मार्क्स के लिए आप इक्वेशन नंबर 2 में रख दो आप। तो a प्लस सी प्लस ई है, तो उसी के बेसिस पे आप रख दो, या फिर इसमें इसको सिंप्लीफाई करके जो लिखा है आपने a इक्वल टू -c, तो -c रखोगे तो 1/15 हो जाएगा, और -1/40 एज इट इज़। सिंप्लीफिकेशन करके आप ध्यान दे सकते हो। नेक्स्ट वी हैव टू अप्लाई हियर, आई मीन सिंप्लीफाई करो यहाँ पे टर्म्स को। अगर सिंप्लीफाई में करता हूँ तो आई विल गेटिंग दैट इज a इज इक्वल टू 40 माइनस 15 डिवाइडेड बाय 15 into 40, that is 600. So you will getting something, therefore a is equal to 40 minus 15 is how much, that is 25 upon 600. So 25 upon 600, it is divisible term, I think. If it is not, so we can divide by 5 first. So 5 5s are 25, then 5 ones are 5, remaining is by default you will get 1, 5 twos are 10, so 120. Then further, if it is possible, you have to divide this part. 5 ones are 5, 5 twos are 10, remaining is by default is of 2, then 4. So a is equal to 1/24. सो ए मिल गया, बी मिल गया, सॉरी ए मिल गया, सी मिल गया, और ई मिल चुका है हमारे को। ये वैल्यूज, ये 3 वैल्यूज हमारे पास डिफाइन है, ए, ई एंड सी। नेक्स्ट वैल्यूज आपको कैलकुलेट करना है, इसीलिए बोल रहा था कैलसी से डायरेक्टली आना चाहिए वैल्यू। बी, डी एंड एफ, अगेन यू हैव टू सिंप्लीफाई दिस पार्ट जस्ट दिस। बी को वैल्यू ले लोगे, डी और एफ को इस साइड रखे, फिर इक्वेशन नंबर 5th एंड 7th में सब्स्टिट्यूट करके उसको भी साइमल्टेनियसली सॉल्व कर देते हो, करोगे डेफिनेटली आपको रिजल्ट मिल जाएगा। तो आई एम जस्ट टेकिंग वन मोर टाइम, बी इक्वल टू माइनस डी माइनस एफ इन इक्वेशन 5th एंड 7th, 5th एंड 7th। अब इक्वेशन 5th और 7th है क्या, ये ध्यान रखना ज़रूरी है। 13b है और 10d 5f है। इक्वल टू 0, 13d था, 13b था आपका, तो b का वैल्यू हमने यहाँ पे लिखा है 10d और 5f था। सिमिलरली सेकेंड इक्वेशन अगर आप देखोगे 7th वाला, 36 9 एंड 4 में 36 भी 9 एंड 4 है। थर्टी सिक्स बी, 9d and 4f was there. So just we have to simplify, minus 13d plus 10d, remaining is, I can say that is a minus 3d, minus 13f plus 5f, you can simplify, remaining is minus 8f equal to 0. Similarly 36d, ये तो अभी ऑलरेडी पहले भी देखा था, 36d plus 9d, remaining is as it is, you will getting 27, that is minus 27d, 36f, that is you will getting
minus 32f equal to 0. We have to simplify this part. फिर से वही चीज़ इक्वेशन आपको मिल -3d सिंप्लीफाई करके सॉल्यूशन लाओगे. आई थिंक यू विल गेटिंग द सेम रिजल्ट. सेम ही रिजल्ट अपने को मिलेगा. खाली एक मिनट ज़रा इक्वेशन में मुझे वर्कआउट करना ज़रूरी है. ये दोनों इक्वेशन हमने लिया था नहीं वहाँ पे 1 था. सो समथिंग वी हैव टू गेट अ डिफरेंट रिजल्ट. सो बाय डिफ़ॉल्ट यू विल गेटिंग आई थिंक अ ज़ीरो वैल्यू. हाँ यस ज़ीरो ही मिल जाएगा डी और एफ. क्योंकि अगर इसको सिंप्लीफाई भी करो तो इक्वल टू ज़ीरो है. सर सब BDF तीनों. यस. सो by default you can say that is a b यस सर equal जीरो है. to 0, d is equal to 0 and f equal to 0. थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग करो नहीं तो फुकट कितना वर्क करेंगे. तो अभी सभी वैल्यूज हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट b इक्वल टू 0, d इक्वल टू 0, f इक्वल टू 0. सिमिलरली a इक्वल टू 1/24, c इक्वल टू -1/15 and e is equal to -1/40. सॉरी माइनस नहीं था प्लस था. +1/40 यहाँ पे है. सी इज इक्वल टू -1/40 इक्वल टू. तो ये वैल्यूज हम उठा के किस में रखेंगे इक्वेशन 1 में. इन इक्वेशन 1 in equation 1. So therefore f of s equal to equation 1 एक बार देख लेते हैं क्या था हमारा. So this was equation number 1. तो ध्यान दो अच्छी तरह से. b आपका 0 है, d आपका 0 है, f आपका 0 है. तो ये तीनों वैल्यूज नहीं लिखूंगा, सिर्फ a c और f का वैल्यू लिखने वाला हूँ मैं. और अपॉन s² + 1, s² + 4 और s² + 9. तो उस बेसिस से हम लोग यहाँ पे जाएंगे और सिंप्लीफाई करते हैं. So let's simplify this part. So a is equal to 1/24 in first equation. In first value is 1/24. So 1/24 s upon a s plus b था. तो b तो आपका 0 आ गया है. s upon s² + 1. फिर सिमिलरली सी एस प्लस डी था. तो सी एस प्लस डी सी इज इक्वल टू -1/15. सो -1/15 इंटू s अपॉन s² + 4. कितना था 4. हाँ s² + 4. एंड लास्ट इज अ डी ई वैल्यू मीन्स कौन सा वैल्यू है लास्ट. दैट इज ई. बिकॉज f 0 है तो यू हैव टू राइट +1/40 s अपॉन s² + हाउ मच इट वाज 9. एक बार वेरीफाई कर लेते हैं तीनों वैल्यूज बराबर है कि नहीं. b0 तो a इज इक्वल टू जो भी आपका 1/24 है. तो 1/24 s अपॉन s² + 4. c अपने को पता है दैट इज -1/15 था अपना. d0 है तो -1/s². तो हमने वैल्यूज प्रॉपर लिखे हैं. अभी सिर्फ लाप्लास इनवर्स कैलकुलेट कर लेते हैं इस पार्ट का. तो 101% इसका लाप्लास इनवर्स डायरेक्ट एकदम ईजी है. सो लाप्लास इनवर्स ऑफ f of s which is equal to 1/24 into cos of t minus 1/15 into cos of 2t plus 1/40 into cos of 3t. तो ये रिजल्ट हमको मिलता है. तो just try to understand how we tackle such a question, because it is a very important, that is you must know that is how to solve such a kind of a numericals. और सिंपल होता है. अभी एक क्वेश्चन और मैं लूँगा लास्ट. और just we have to simplify one more question, that is third one I think.
s+2 अपॉन s+3 इंटू s+1 रेज टू पावर 3। तो यहाँ रिपीटेड टर्म्स है, तो डायरेक्टली मैं इसको, ये तो हमारा एफ ऑफ एस हमको दिया है a अपॉन s+3 प्लस b अपॉन s+1 प्लस c अपॉन s+1 the whole square and plus d upon s+1 the whole cube. Just try to understand, this is a repeated, this is not a quadratic form, so just try to understand. So we have to just simplify this part, so I'm just writing this part, a upon s+3 as it is। देखो इधर इसको पहले ये तीनों को एक साथ इक्वेट कर दो, तो तीनों को इक्वेट करने जाओगे तो b इंटू s+1 दी होल स्क्वायर आएगा प्लस c इंटू s+1 आएगा सिर्फ और सिर्फ, और डिवाइड बाय प्लस d अपॉन s+1 दी होल क्यूब हो जाएगा। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कैसे किया गया। देखो इधर s+1 है, इधर s+1 द होल क्यूब है, ये s+1 द होल क्यूब में एलसीएम मेथड कर अप्लाई करोगे तो s+1 द होल क्यूब क्रिएट करने के लिए s+1 द होल स्क्वायर से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना पड़ेगा। तो वही चीज़ यहाँ पे किया है, b इंटू s+1, ये s+1 द होल स्क्वायर है, ये s+1 द होल क्यूब है, यहाँ पे s+1 से मल्टीप्लाई, तो इसके लिए इनको पहले कंबाइन कर लिया। अब सिंप्लीफाई कर दो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो डायरेक्टली यहाँ पे लिखता हूँ s+2 is equal to a into s+1 the whole cube plus b into s+1 the whole square plus c into s+1 plus d into s+3। डिवाइड में फिर से वही टर्म्स आपको आएंगे, तो कैंसिल होगा, तो लिखने की ज़रूरत नहीं है आपको। अब सिंप्लीफाई कर सकते हो आप लोग इस पार्ट को, पहले इसको सिंप्लीफाई कर दो, s+3 से आप सबको मल्टीप्लाई करना ही है। तो अगर आप ध्यान दोगे अच्छी तरह से तो a का वैल्यू डायरेक्टली आप कैलकुलेट कर सकते हो। अगर s इक्वल टू आप -3 रख दो फॉर एग्जांपल, तो ये सभी टर्म्स आपके ज़ीरो हो जाएंगे, पूरा टर्म्स के 0 इंटू यहाँ पे a का वैल्यू आपको मिल सकता है। सिमिलरली अगर आपको b का वैल्यू, रिमेनिंग कोई टर्म्स का वैल्यू निकालना है, जैसे d निकल सकता है, s इक्वल टू अगर -1 रख दो तो ये पार्ट आपका 0 हो जाएगा। सिमिलरली ये भी पार्ट आपका 0 हो जाएगा, ये भी पार्ट आपका 0 हो जाएगा, तो आपको d मिल सकता है। तो a और d एकदम स्मूथली आप वैल्यू निकाल सकते हो। आगे अगर s इक्वल टू आप 0 रखते हो, फॉर एग्जांपल अगर 0 रखते हो तो a आपको मिल जाएगा, यहाँ पे 0 रखोगे तो आपको यहाँ पे b का वैल्यू मिलेगा, 0 यहाँ पे रखोगे तो c एज इट इज़ मतलब c मिलेगा और d मिलेगा। उससे आप a और d का वैल्यू रख के एक इक्वेशन जनरेट कर सकते हो आप अगर चाहिए तो, लेकिन हमको यहाँ पे प्रॉपर वे से कैलकुलेट करना है। तो a और d वी कैन कैलकुलेट इजीली, आप लोग कैलकुलेट कर लेना घर पे, a और d इजीली कैलकुलेट कर सकते हो बाय पुटिंग दी वैल्यूज। बट c और d के लिए, b और c कैलकुलेट करने के लिए आपको एक्सपांशन दे दोगे तो इट विल बी अ बेटर फॉर योर साइड। यहाँ पे a प्लस b द होल क्यूब देना, यहाँ पे पहले a प्लस बी होल स्क्वायर देना, सिंप्लीफाई करना और s+3 से मल्टीप्लाई कर देना। जस्ट ट्राई दिस सम एट योर होमवर्क पॉइंट ऑफ व्यू एंड आई एम गोइंग टू से दैट इज लाप्लास ट्रांसफॉर्म में इतना ही करो। इवन हेवी साइड यूनिट स्टेप फंक्शन जो है वो फर्स्ट पार्ट नहीं है, लेकिन जो इनवर्स वाला पार्ट था वो माइट बी इट इज इन योर सिलेबस, तो वो चीज़ मैंने कवर किया है। बट वो उस पर डाइस का हमारा जब भी मीटिंग होगा तो उसमें मैं एक बार फिर से पूछूंगा, क्योंकि हेवी साइड मोस्ट प्रोबेबली शायद नहीं होगा। बट पार्शियल फ्रैक्शंस, कन्वोल्यूशंस थ्योरम, यूजेस ऑफ डिफरेंशिएशन, एप्लीकेशन ऑफ सॉरी वेरी सॉरी, हेवी साइड नहीं, एप्लीकेशन जो हमने पढ़ा है ly डबल डैश ये सब सेल्फ स्टडी में आपको पुट किया गया है। बट कन्वोल्यूशंस, यूजेस ऑफ डिफरेंशिएशन, यूनिट स्टेप फंक्शन एंड मेथड ऑफ पार्शियल फ्रैक्शंस, ये पार्ट कंपलसरी आपको सेल्फ स्टडी में नहीं दिया गया है। ये चीज़ हम मतलब टीचर्स के अंडर में दिया गया है जो करना है। सेल्फ स्टडी में डिफरेंशियल इक्वेशन वाला पार्ट था, वो चीज़ था, बट उसको भी हमने कवर किया है। प्रैक्टिस आप करो अच्छी तरह से, एग्जाम में क्वेश्चंस नहीं आएंगे उस चीज़ पर मैं बाद में आपको बताऊंगा।
बट वाई डबल डैश वाई ट्रिपल डैश के बेसिस पे हमने सॉल्व किया, क्योंकि उसमें हाफ पार्ट जो है वो तो आपका पार्शियल फ्रैक्शन ही है। तो बाय डिफ़ॉल्ट अगर पार्शियल फ्रैक्शंस आप सॉल्व कर लेते हो तो इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू इन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो क्योंकि उसमें अगर 5-6 न्यूमेरिकल सॉल्व किए हो आप, यहाँ पे 5-6 न्यूमेरिकल्स अगर सॉल्व कर लेते हो तो पार्शियल फ्रैक्शंस आपका बाय डिफ़ॉल्ट कवर हो जाता है। सो विल स्टॉप हियर, फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स आई विल स्टार्ट न्यू मॉड्यूल दैट इज़ अ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, और उसके बेसिस पे हम लोग आगे स्टडी करेंगे। एनीवन हैविंग एनी डाउट्स यू कैन आस्क मी, or wait, because attendance is very low, only 25 students are present. I'm taking the attendance, don't left. So if anyone having any doubts you can ask me। किसी को अगर कुछ डाउट हो आप पूछ सकते हो, और यू हैव टू स्टार्ट स्टडी स्टार्ट रखो आप लोग। जस्ट वेट 1 minute। Laplace transform is over. Now complex variable, from tomorrow onwards I will start the complex variables। अपसेंट मत रहो कोई भी, क्योंकि कॉम्प्लेक्स वेरिएबल थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स टाइप है। मतलब अगर एक पार्ट मिस होता है तो दूसरे पार्ट में मतलब एडजस्ट करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, बिकॉज कॉम्प्लेक्स नंबर काइंड है। अगर आप हाइपरबोलिक फंक्शंस या लॉगरिथमिक फंक्शंस अगर मिस करते हो तो जिस तरह वहाँ पे इश्यूज होते हैं कि ये पार्ट कहाँ से अचानक से डायरेक्टली इंट्रोड्यूस हुआ है। Similarly, here we are facing that is in complex variable. If you are miss the first lecture, like when I am going to explain that is analytic functions, एनालिटिक फंक्शन ही अगर मिस हो जाएगा आपका तो बाय डिफॉल्ट आगे का पार्ट आपको थोड़ा डिफिकल्ट होगा। कुछ सिंपल आपका जो सिलेबस है अप्लाइड मैथमेटिक्स 3 और इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 3, काफ़ी शॉर्ट सिलेबस कर दिया है, तो इजी है, बहुत इजी है पासिंग करना इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स को। जो भी आपको यहाँ पे सॉल्व कराया जा रहा है उस पर प्रैक्टिस करो। टेक्स्ट बुक ऑलरेडी अपलोड किया है, उसमें से और सम्स देखो, सम्स का और एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करो, डेफिनेटली और इजीली आप क्लियर कर सकते हो। एनीवे, अगर किसी को कोई डाउट नहीं है तो हम स्टॉप करते हैं, बिकॉज आई थिंक यू हैव वन मोर लेक्चर। ओके, सो नाउ यू कैन लेफ्ट इफ यू वांट। सी यू टुमारो। थैंक यू।